اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہنوں، عزیزوں، ریوائور اور سننا کی اسلامک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ۔ سب سے پہلے آپ سب سے میری گزارش یہی رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے دیے گئے فالو بٹن کو کلک کر کے اس اسلامک چینل کو لائک کریں، کیونکہ یہ آپ کے نامۂ اعمال میں ایک صدقہ جاریہ لکھا جائے گا جو آپ کو اس دنیا سے انتقال کرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بینیفٹ میں رہے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں، باقی سب بند ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہوتی ہے علم نافع، ایسا علم جو کسی انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے۔ ایک برہنہ یا ایک بے شرم لڑکی کو آن لائن ہزاروں لاکھوں ویوز اور ہزاروں لاکھوں شیئرز اور سبسکرائب ملتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی پیروکار ہوتی ہے اور باقی لوگ بھی اس کی پیروکاری کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامک چینل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلا رہی ہے، اس کو آپ کتنے لائکس کر سکتے ہیں اور اس کو کتنے سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ شادی یا شیطانی؟ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آج کی ڈیٹ میں اسلامک نکاح کرنا بہت گوارا اور بہت دشوار ہو چکا ہے۔ شیطان مردود، جس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا جبکہ جنت سے اس کو نکال دیا گیا تھا، وَلَأُضَلِّنَّهُمْ، کہ میں ان کو دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کو ہر طریقے سے ان کو بہکاؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، ان کی آئیڈیالوجیز بدلا دوں گا۔ وہ اپنے وعدے میں کئی حد تک کامیاب ہو رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے لوکل کشمیری معاشرے کی بات کی جائے تو ذرا جھانکیے اور دیکھیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ شیطان مردود ہمیں 2 طریقے سے بہکاتا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں 2 طریقے سے ڈیلیوژن میں رکھتا ہے یا دھوکے میں رکھتا ہے۔ پہلا اس کا بہکاوا یہ ہوتا ہے کہ وہ آج کے نوجوانوں کو نا امید کر دیتا ہے یا آج کے پیرنٹس کو نا امید کر دیتا ہے اور ان کے دلوں میں ڈاؤٹس پیدا کر دیتا ہے، نا امیدیوں کے چراغ جلا دے دیتا ہے کہ اگر آپ نے جلدی نکاح کرایا تو اس کے رزق کا کیا ہوگا، یہ کہاں سے کما کے لائے گا، اس کی تو ابھی اتنی استطاعت ہے نہیں، اس کا تو اتنا سٹیٹس ہے نہیں۔ نوجوانوں کو بھی اس بہکاوے میں رکھتا ہے کہ بھائی تمہیں کیریئر میں بہت زیادہ ایڈوانس کرنا ہے، بہت ہی اونچے کسی سٹیشن پہ پہنچنا ہے، تب جا کے تم لڑکی کے قابل بن پاؤ گے۔ لڑکیوں میں بھی یہی آئیڈیالوجی انسٹل کی ہوئی ہے کہ تمہیں ایجوکیشن کے ٹاپ کلاس معیار پہ پہنچنا ہے، ٹاپ سٹیشن پہ پہنچنا ہے، دنیائی اعتبار کسی بڑے منصب پہ فائز ہونا ہے، تب جا کے تمہیں اچھا رشتہ ملے گا۔ یہ پہلا بہکاوا ہے شیطان کا۔ دوسرا بہکاوا میرے دوستوں، شادی کی یا نکاح کی جو پاک پارسا رسم ہے، جو پاک پارسا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پلیوٹ کروا دینا، اس میں ملاوٹیں اور بدعتیں پیدا کرنا، دین کے طریقے سے جو شریعت کا طریقہ تھا نکاح کرنے کا، اس میں ملاوٹیں قائم کرنا، اس میں نئی بدعتیں ایجاد کروا دینا۔ لوگ اکثر ان بدعات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان نا امیدیوں کا، شیطان کے ان بہکاووں کا، ان ملاوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، ان کو راضی نہیں کر پاتے، اور اس وجہ سے جس نکاح کی بنیاد شیطانیت پہ شروع ہوتی ہے یا شیطانی اعمال پہ شروع ہوتی ہے، اس کا انجام بھی اسی پہ ہوتا ہے یا اس کا مستقبل، اس کا فیوچر بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ ان نکاح کے رشتوں میں کوئی برکت نہیں ہوتی، خاوند اور بیوی آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، آپس میں جگ جگ کر لیتے ہیں، آپس میں ان میں بہت زیادہ اختلاف ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نکاح کی اہمیت کو جاننے کے لیے اور اس پہ اللہ رب العزت کے وعدے کو جاننے کے لیے، اس پہ انلائٹن ہونے کے لیے، اس پہ اپنی نالج بڑھانے کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کو آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، سورہ نمل کی آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے
जो कि पाक दामन लड़के और लड़कियां हो, इनका निकाह जल्द से जल्द करवा दो, उसके बाद रिज़्क का मामला मेरे पे छोड़ दो। लेकिन आज की डेट में हम लोगों की क्या आइडियोलॉजी रहती है मेरे दोस्तों, हम पहले रिज़्क का मामला अपने आप पे सेटल करवा देते हैं, उसके बाद जाके निकाह ढूंढते हैं। यानी कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कमांड है उसके कंट्रास्ट में हम कर रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट में, हम कंट्ररी में कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो फरमान ये है कि और मैं रज़्ज़ाक हूँ, मुझ पे छोड़ दो। छोटी सी एक कमाई अगर हो उस पर तुम अपना घर सस्टेन कर सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बड़े बड़े अपने कैरियर के स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं। जब तक कि हमारा लड़का हमारी लड़की 30 साल 35 साल की एज भी क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो वो हाई सेटअप कैरियर स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी अकम्प्लिश नहीं कर पाते हैं, और इसी चक्कर में निकाह डिले होते जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, एक बार वो सहाबाए किराम की मजलिस में बैठे थे और मुखातिब हो रहे थे नौजवान सहाबाए किराम से। वहाँ पर सारे नौजवान लड़के बैठे हुए थे सहाबाए किराम में से, सब 20-22 साल की उम्र के, और उन सब को मुखातिब होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तुम में से जिसको इस्ताअत है वो अपना निकाह करा दे, क्योंकि इससे तुम्हारी आंखों की नज़रों की हिफाजत होगी और तुम्हारे शर्म का जो है वो पारसा रहेंगे। तुम किसी गलत काम में नहीं फंसोगे, तुम किसी नाजायज़ हरकत को नहीं कर बैठोगे, किसी नाजायज़ हरकत का इर्तिकाब तुम्हारे ज़रिए नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि पहले अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा एडवांस करो, उसके बाद जाके निकाह करना। बट उनने ऐसा नहीं फरमाया। उनने कहा जिनमें भी इस्ताअत है, इस्ताअत का मतलब ये नहीं कि आपके पास बंगला हो 3 स्टोरी का, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, आपके पास 1 लाख रुपए फी माहाना देने वाली सैलरी हो। इस्ताअत का मतलब ठीक ठाक इनकम हो जिससे आपका घर बच सके, जिससे आप अपने वाइफ को, अपनी ज़ौजा को सस्टेन कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मौजू के असल बयान पे, जो कि है आज की डेट में जो हो रहा है वो क्या है, शादियां हैं या शैतानियां हैं। तो हम इस खुलासे पे आते हैं और मैं आपको एक एक शैतानी अमल का लिस्ट बताता हूँ कि आज की डेट में कौन कौन सी शैतानी अमल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ये पाक सुन्नत है इसको हम एक खराबी में और एक बिदअत में तब्दील कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा शैतानी अमल, अपने निकाह की ताखीर करते जाना इस चक्कर में कि हमें खलकों में मलक मिल जाए, यानी कि इंसानों में एक फरिश्ता ढूंढने के चक्कर में अपने निकाह को डिले करते जाना, ताखीर करते जाना। आज की डेट में दोस्तों क्या होता है, चाहे पेरेंट्स हो या चाहे वो इंसान हो जो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है या ढूंढ रही है, वो काफ़ी बड़े मायार, काफ़ी ऊंचे स्टैंडर्ड सेटअप करता है। कैरियर में भी बहुत एडवांस्ड होना चाहिए वो लड़का जो मुझे मिले, शक्ल सूरत से भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अमीर भी होना चाहिए, उसमें हर कोई क्वालिटी होनी चाहिए, उसके फेशियल फीचर्स भी सारे ठीक होने चाहिए। ये परफेक्शन ढूंढते अगर रहोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, कभी आपका निकाह हो नहीं पाएगा, क्योंकि परफेक्शन जो है वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है एक रिश्ते का इंतखाब करने के लिए, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रिश्ता जो है वो 4 चीज़ों की बुनियाद पे किया जाता है, शक्ल की बुनियाद पे, हस्ब व नसब की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे, और दीनदारी की या तकवा की बुनियाद पे, परहेजगारी की बुनियाद पे। इनमें से सबसे ज़्यादा वज़न, सबसे ज़्यादा मायने तकवा रखता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुत्तकी या परहेजगार लड़के या लड़की का इंतखाब करो, ताकि तुम उनमें से ना बन जाओ जो कि हारने वाले हैं। तो ये हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है, सबसे हमारे लिए अहम कायदा, अहम फार्मूला है एक रिश्ते का इंतखाब करने के लिए। दूसरी शैतानी अमल मेरे दोस्तों, महर के मामले में बहुत ज़्यादा हसास या सेंसिटिव होना, या सोशल स्टेटस को देख के महर मुकर्रर करना। यानी कि जिस लड़की का जितना ज़्यादा सोशल स्टेटस, जितने आला हस्ब नसब या ख़ानदान की वो हो, उसी हिसाब से उसका महर का डिमांड करना अपने शोहर से, होने वाले शोहर से। दोस्तों इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही हसास मामला है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जहाँ तक ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात है या अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात है, वो कितना भी बड़ा महर सेटअप करे, उनकी दौलत में कोई असर पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उनके पास अवेलेबल है, उनके पास इस चीज़ के वसाइल है। लेकिन जब इस चीज़ को बड़े से बड़े महर रखने को हम एक
स्टीरियोटाइप बना लेते हैं या एक कायदा बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं सोसाइटी का, तब इस चीज़ पे जब यही नौबत एक गरीब पे आती है तब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गिरा और बहुत ही ज़्यादा गुरेज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो इंसान मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, जब उस पर भी कंपटीशन की वजह से उसके कानों पे भी यही स्टैंडर्ड पड़ जाता है और उसको भी उतनी ज़्यादा महर अरेंज करनी पड़ती है जितना कि एक अमीर इंसान करता है, तो इस चीज़ के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है, लोन्स निकालने पड़ते हैं और भी बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि नामुनासिब है। और इस सारे प्रोसेस में, इस सिलसिले में निकाह की ताखीर हो जाती है। तीसरा शैतानी अमल मेरे दोस्तों, जो कि ज़्यादातर ख़वातीन हजरत करा देती है, इसका इर्तिकाब जो है वो ख़वातीन हजरात के ज़रिए होता है। अपने मर्दों पे ये बेतहाशा जुल्म हो जाता है। वो ये है कि मर्द हजरात को अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी से या अपनी माली कुव्वत से ज़्यादा खर्चाने के लिए प्रेशराइज करना, इस चीज़ पे उनके कांधों पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालना कि भाई फलानी अमल करना है, ये रस्म करनी है, वो रस्म करनी है। हमारा घर अभी एक मंजिला है, अब इसको 3 मंजिला बनाना है क्योंकि इसमें एक नया जोड़ा कायम होने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, एक फैमिली चाहे तो एक कमरे में भी रह सकती है जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम हो और एक साथ में छोटा सा किचन हो, लेकिन हमारी खवातीन हजरात हमारे मर्दों को इतना ज़्यादा इस चीज़ पे परसुएड कर लेती है, इतना ज़्यादा इस चीज़ पे उनको इमोशनली प्रेशराइज कर लेती है कि नहीं, कम से कम एक स्टोरी तो चढ़ानी ही पड़ेगी। अगर उस बेचारे के पास हिसाब भी ना हो, उस बेचारे की इतनी माली कुव्वत ना हो, वो बेचारा मजबूर हो जाता है हाउस लोन निकालने के लिए, होम लोन निकालने के लिए, अलग अलग किस्म के कंजप्शन लोन्स ले लेता है, वो अपने आप को कर्जे में डुबा लेता है, इतना बड़ा कर्जा कि वो जो 10 साल 15 साल तक अपनी साबिका ज़िंदगी में भी नहीं चुका, अपनी आने वाली ज़िंदगी के 10-15 साल तक भी नहीं चुका पाता है। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था निकाह आसान है और निकाह को आसान कर लो, निकाह मुश्किल काम नहीं है और सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चे हो। तो हम अपने आप को 10-15 साल का मकरूज बना के क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं? शैतानी अमल मेरे दोस्तों, अमीरजादों के साथ मुकाबला करना या ऐसे लोग जो मुनफारे हाल है, यानी कि जिनको अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है, जो आसूदा हाल है, उन लोगों के साथ मुकाबला करना, उनके कस्टम्स को, उनके रवासिम को कॉपी करना, उनके तौर तरीके को कॉपी करना और अपनी शादियों में वो इम्प्लीमेंट करवाना, चाहे आपके मर्द हजरात को उस चीज़ की फाइनेंशियल एबिलिटी हो, माली कुव्वत हो या ना हो, उसको क्यों ना मकरूज होना पड़े, उसको क्यों नहीं बैंक से लोन निकालना पड़े, लेकिन अपने झूठे शोशे को पूरा करने के लिए करवाना है उससे। क्योंकि हमें मार्केट में क्या जवाब देंगे, हम सोसाइटी में क्या जवाब देंगे कि उसका बेटा गया था BMW में और तुम मारुति में जा रहे हो, तुम सेंट्रो में जा रहे हो, उसने उस वाली फलानी एजेंसी का टेंट लगाया हुआ था और तुम सीधे साधे एक छोटे से मैरिज हॉल में कर रहे हो, उसने आलीशान तरीके का सेटअप किया हुआ था घर में और तुम्हारे घर में एक नॉर्मल सा डेकोरेशन भी नहीं हो रहा। ऐसी चीज़ें मतलब साइकोलॉजिकली इंसान को ब्रेन वॉश कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान शादी को एक बहुत ही मुश्किल काम समझ लेता है। उसने बेचारे ने कम से कम 10 लाख का बजट साइड लाइन करके रखा होता है क्योंकि उसके दिमाग में ये ब्रेन वॉश हो चुका होता है कि इस रकम से कम में शादी होगी भी नहीं। जबकि मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपको ऐसे मुत्तकी लोग दिखाऊंगा जो कम से कम रकम में भी शादी कर चुके हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बजा ला चुके हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये था पार्ट 1 शादी या शैतानी बयान का। इसका पार्ट 2 आपको देखना है और जिसमें मैं इससे ज़्यादा आपको खुलासे से और तशरीह से बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से बदफालियाँ और बदआमालियाँ हैं जिससे हमारी ये शादियाँ शैतानियों में तब्दील हो रही है। अगर इस चीज़ की आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल के साथ वाबस्तगी रखें, रिवाइवर ऑफ सुन्नत चैनल के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, सुन्नतों को ज़िंदा करने वाले रहें और मुत्तकी रहें। मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम बेग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।